Good evening, everyone. Good evening. We are starting with a new topic, sequence and series. It is a very long and I'll say exhausting topic, sequence and series. There are very small variations in it, AP, GP, HP, AGP, quadratic sequence, user defined sequence. तो छोटे छोटे वेरिएशंस बहुत हैं एवरी पेपर ऑफ कैट एवरी स्लॉट ऑफ कैट you can expect 1 to 2 questions from this. हर स्लॉट में एक से दो क्वेश्चंस आते ही हैं either in the form of equation or directly in the form of sequence. 1 to 2 questions can be expected in every slot, every paper of CAT. I'll cover the theory of AP, then we'll solve 3 to 4 questions, then theory of GP, 3 to 4 questions. So balancing theory question. Let us start. But I did not add any slides in this. Give me a second. Let me add a couple of slides to this. Just hold on for a second. Yes, let us start. So I was telling you, you can expect 1 to 2 questions minimum in every slot of CAT. We are starting with arithmetic progression. So I'll derive a lot of results. Formula आपको याद करने हैं. And many times if you understand formula किधर से आया, you can answer questions faster in CAT. See, if I say this is the sequence that I have 3 plus 4 7 plus 4 11 plus 4 15 plus 4 19, or this is the sequence I have 9 minus 4 15 minus 4 11 minus 4 7 minus 4 3. They are both called arithmetic progressions, APs. Arithmetic progression is defined by a common difference. There is a difference of 4 units here, 4 units here. So this is a AP, a sequence in which there's a common difference between terms. There's a difference of minus 4 here. There's a difference, but it is minus 4. This is called a increasing AP. This is called a decreasing AP. Terms are decreasing. Now some technical notations. First term of a AP is denoted by A. Common difference is denoted by D. If this is A, this will become A plus D. I've added D. I'm adding one more D. This will become A plus 2D. I'm adding one more D. A plus 3D. I'm adding one more D. A plus 4D. So now coming to the pattern, the first term is usually denoted by A. First term is denoted by A. Now what term is this? This is T1. This is T2, T3, T4, T5. So fifth term has 4D.
Fourth term has 3D. Third term has 2D. So generally speaking, nth term will have A. Every term has A. Every term comes with a A. And fifth term has one less D. Fourth term has one less D. So nth term will have one less D. So I want you to copy down the representation of an AB. Look at this. As well as general term. First term A, common term A plus n minus 1D. We are going to cover AP in complete detail. क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, how does all of this work? What are you seeing on the screen? Formula किधर से आया? How does the formula work? That is what we are seeing on the screen. लिख लो, कमेंट डन. जनरल टर्म बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, ऑन द स्पॉट क्लिक करना चाहिए. Comment done. मूविंग ऑन. अब थोड़े से और पैटर्न देखो. फॉर्मूले कहां से है मैं आपको वो सिखा रहा हूं. What is the addition of 3 and 19? That is 22. What is the addition of 7 and 15? 22. What is the addition of 11 plus 11? Again 22. ये जो मैं सिखा रहा हूं इसको हाईलाइट करना, ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज हैं. Addition of first term and the last term will be same as addition of second term and second last term will be same as third term and third last term. All of this is equal to double of arithmetic mean. क्योंकि इनका एडिशन बराबर है, किसके बराबर है? It is double of arithmetic mean. Highlight this property. तो ना जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वी आर नॉट एबल टू रिकॉल दीज प्रॉपर्टीज, फिर हम फॉर्मूले लगाते हैं बड़े बड़े, फिर कैट नहीं निकलता. सो रिमेंबर दिस अप्रोच. अब इसी के थ्रू फॉर्मूला आएगा. आई विल शो यू दैट फॉर्मूला. सो व्हाट हैव आई प्रूवन? फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट का एडिशन इज ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन. So I can derive from this arithmetic mean is equal to first term plus last term upon 2. तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं a plus n minus 1d. तो यहां से आपका एक फॉर्मूला आता है और इसको आपको अच्छे से हाईलाइट करना है. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/2 2a plus n minus 1d. मैंने इसी चीज को ऊपर लिख दिया अरेंज करके. तो हाईलाइट दिस एज वेल, हाईलाइट दिस एज वेल. क्या होता है कोचिंग क्लासेस में ये सारी अप्रोच कवर नहीं होती. फॉर्मूला कहां से आया? दे जस्ट टेल यू जनरल टर्म क्या होता है, एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, हो गया घर जाओ. नो, ये कैसे आया, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और हैवी क्वेश्चंस बनते हैं.
नाउ अभी मैं आपको बोलता हूं, लेट अस से देयर आर 10 नंबर्स, उनका अरिथमेटिक मीन बेसिकली स्टैंड्स फॉर एवरेज, उनका एवरेज लेट अस से 5 है. तो कैन यू से द एडिशन ऑफ नंबर्स would be n into average? Sum of numbers is equal to number of terms into arithmetic mean. Common sense. मैं आपसे कहता हूं ऑन एवरेज 10 लोगों को 5-5 रुपए जमा करने हैं. ऑन एवरेज 10 पीपल विल डिपॉजिट 5 रुपीज ईच. कितने रुपए इकट्ठे होंगे? 10 इंटू 5 50. तो यू वांट द सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज. तो यहां से फॉर्मूला डिराइव होता है एडिशन ऑफ n टर्म्स. देखो आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या बनाया था? 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. तो ये क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. तो ऐसा डेरिवेशन क्लिक होगा तो आई कैन शो यू शॉर्टकट्स. हाईलाइट बोथ. अब एक और चीज देखो. When I write down these terms, 3 plus let us say 4 plus 4, there are 3 terms. Middle term is the arithmetic mean. If there are 5 terms, 3, 7, 11, 15, 19, ये middle term है ना? Middle term is the arithmetic mean. तो ये property समझो आप. If there are 7 terms, 3, 7, 11, 15, 17, 15, 19, 23, 27, तो मिडिल टर्म कौन है? ये, दैट इज द अरिथमेटिक मीन. अब मैं क्या सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना. कितने टर्म्स है आपके पास? 3. और कौन सा टर्म मीन है? देखो t 3 प्लस 1/2. सेकेंड टर्म इज द मीन. कितने टर्म्स है? 5. कौन सा मीन है? 5 प्लस 1/2. t3 इज द अरिथमेटिक मीन. अभी कितने टर्म्स है? वी हैव हाउ मेनी टर्म्स? 7 टर्म्स. कौन सा टर्म एवरेज होगा? 7 प्लस 1/2, t4. तो ये लिख देना आपको. व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, ये हाईलाइट करना, ऑड होना जरूरी है. देन द मिडिल टर्म इज tn प्लस 1/2, दैट इज द अरिथमेटिक मीन. अगर मिडिल टर्म नहीं है तो आपको फर्स्ट प्लस लास्ट लिखना पड़ेगा. व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स is even, then t1 plus t last upon 2 is the arithmetic mean. So take your time, copy this down, comment done. ये बेसिक प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन के. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन. कंप्लीट दिस. सेकेंड वाला स्लाइड में भी आप ध्यान देना. व्हेन द टर्म्स आर ऑड, मिडिल टर्म इज द अरिथमेटिक मीन. गुड, वेरी गुड. तो ये अप्रोच याद रखना. ये डिराइव कहां से हुआ, कैसे हुआ ये? हाउ डिड वी रीच दिस कंक्लूजन? चलो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, इससे आगे बढ़ते हैं. ये बेसिक थ्योरी है. चलो मैं आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाता हूं. देखो, अगर आपके पास इफ यू हैव टोटल ऑफ लेट अस से
200 टर्म्स, 200 टर्म्स आपके पास है और आप उनका एवरेज निकालना चाहते हो। ध्यान सुनना, यू वांट टू फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन। तो आपको टी 90 के साथ में कौन सा टर्म लगेगा टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन? डू यू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड? ये याद है आपको? फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ऐसा जब करेंगे 200 टर्म्स हैं, देयर आर 200 टर्म्स, सो 90th टर्म से पेयर कौन बनाएगा टू फाइंड अरिथमेटिक मीन? Who will form the pair with 90th term to calculate the arithmetic mean? तो बेटा इसमें एक छोटा सा पैटर्न आपने ध्यान नहीं दिया। देखो, व्हेन आई राइट t1 प्लस t लास्ट, इनकी पोजीशंस का एडिशन है n+1। व्हेन आई राइट t सेकेंड प्लस t सेकेंड लास्ट, इनका पोजीशन का एडिशन है n+1। व्हेन आई राइट t थर्ड प्लस t थर्ड लास्ट, इनका एडिशन n+1 है। अगर आपके पास 200 टर्म्स हैं तो 200+1 होना चाहिए पोजीशंस। पोजीशन ऑफ लेफ्ट टर्म एंड पोजीशन ऑफ राइट टर्म शुड बी 201। तो 90 में क्या ऐड करोगे टू जनरेट दैट? 111। तो टर्म 111 एंड टर्म 90 का एवरेज इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। I will show you application of this method in CAT question. मैं आपको इनका एप्लीकेशन दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इन CAT क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन। अभी आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे, ट्राई दिस। इजी क्वेश्चंस, 1 मिनट पर क्वेश्चन। स्टार्ट। क्या पूछा है? 21st टर्म, पहला टर्म a प्लस n-1 into common difference. What is the common difference between these terms? 5. So 103 is 21st term. खत्म, कुछ नहीं करना आपको। So first few questions are वो जो फॉर्मूले सीखे, मेथड सीखे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 21st टर्म चाहिए तो 20 टाइम्स 5 प्लस फर्स्ट टर्म, क्या फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। हो गया, डन। कंप्लीट दिस।
ये क्या है? विच टर्म विल बी 308? कौन सा टर्म होगा 308? सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d. हमें कौन सा टर्म होगा n को डिराइव करना है. What is the value? 308. What is the first value? 2 plus n-1. कितना गैप है? गैप इज 3. कॉमन डिफरेंस इज 3. इसको इधर भेज दो. 306 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3. 3 को कैंसिल कर दो. 3 कैंसिल हो गया. 102. n-1. n is equal to 103. So this is the 103rd term. This is the 103rd term. ये 130वीं टर्म है. B. गुड. सिंपल प्रैक्टिस है. For the sequence 3, 7, 11, 15, how many terms from the start, that is 3, will add up to 3403? आपको स्टार्ट से ऐड करना है और 3403 बनाना है. गो ऑन, गिव इट अ ट्राई. कितने नंबरों का एडिशन होगा 3403? फॉर्मूला क्या है सम ऑफ n टर्म्स का? द फॉर्मूला इज सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. सो n तो हमें पता नहीं है. एडिशन इज 3403. तो n/2. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 3 इंटू 2 6. कितना गैप है? +4 +4 प्लस n-1 इंटू 4. आप इसको अगर रीअरेंज कर दो तो बेटर रहेगा. n/2 ब्रैकेट, ये अंदर आ जाएगा 4n, ये हो जाएगा -4 + 6, सो 4n + 2. फ्रॉम हियर आई कैन टेक आउट. देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. n इंटू 2n + 1 इज इक्वल टू 3403. अब हम सजेस्ट करते हैं, वी सजेस्ट एट दिस स्टेज इसको कभी भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट मत करना. नेवर कन्वर्ट दिस इन क्वाड्रेटिक. आप ना वैल्यूज को पुट कर करके चेक करो. बेटर होगा आपके लिए कि ये कौन सी रेंज में है. देखो, डू यू सी, अगर ये n मल्टीप्लाई हो जाए अंदर में तो आई विल हैव 2n² + n. तो किसी स्क्वायर का डबल इसके आसपास होगा. जैसे 20 का स्क्वायर 400 इंटू डबल 800. बहुत दूर है इससे. मैंने रख दिया 25. आई पुट 25. 25 का मतलब आई पुट 30 का स्क्वायर 900 इंटू 2 1800. अभी बहुत दूर है इससे. मैंने पुट कर दिया 50. लेट अस से 50 पुट कर दिया. 50 का स्क्वायर 2500. डबल करोगे 5000. देखो आगे निकल गया ना. It got way beyond. 40 का पुट करो. If I put 40 here, मैं बेसिकली इसमें 40 रख के चेक करो, नथिंग मोर. 40 का स्क्वायर 1600 इंटू 2 3200. देखो इसके नजदीक आ रहा है. तो इसकी वैल्यू 40 के आसपास है.
तो मैंने रख के देखा 40, मैंने 40 रखा तो अंदर बन जाएगा 81 विच इज 3200। मैंने रखा 41, अंदर क्या बन जाएगा 83। देखो यूज अ कैलकुलेटर। तो in such a question use approximations, use observation, never multiply or open the bracket। तो देखो ये exactly 3403 आ रहा है। तो what is the value of n? 41। that means आपको 41 टर्म्स लगेंगे, उनका जो सम होगा that will be 3403। ये ट्रिक पे ध्यान दो। these are the things जो क्लासरूम में कवर नहीं हो रहे होते। जनरल कोचिंग क्लासेस में इफ यू गो, वो लंबे लंबे मेथड बना रहे हैं, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, कैसे होगा? टेक योर टाइम, ऑब्जर्व द अप्रोच। 41 तक कैसे पहुंचे? मैंने 10 रखा, 20 रखा, 30 रखा, 40 रखा। व्हेन आई पुट 40 इन दैट ब्रैकेट तो मेरे को वैल्यू आ गई 3200 के आसपास। 3200 के आसपास मेरे पास वैल्यू आ गई। 3240 वैल्यू आ गई मेरे पास, 3240। तो मैंने उसके बाद का नंबर रख के चेक कर लिया, वो एग्जैक्ट मैच हो गया। दैट इज माय आंसर। एग्जाम में ऑल्सो आई विल नॉट आस्क यू टू सॉल्व सच अ इक्वेशन। Comment done, so we can move to the next question. Moving on. Chalo. Try this. Sum of how many terms will be 60? कितने टर्म्स का एडिशन 60 होगा? टेक 1 मिनट। देखो इतना छोटा सवाल, यू कैन डू दिस मैनुअली बिना फॉर्मूले के। यू कैन डू दिस इफ यू वांट। 20 प्लस 16 प्लस 12, ये अभी ऑलरेडी 48 हो चुका है। 48। अब इसके बाद क्या आएगा? 4 कम करके प्लस 8, उसके बाद क्या आएगा? प्लस 4। आप इनको ऐड करके देखो, द एडिशन इज 60। तो हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म।
5 टर्म्स, लेकिन ये थोड़ा ऐसा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है मैंने. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज जीरो. नेक्स्ट टर्म इज जीरो. तो 6 टर्म का और 5 टर्म का दोनों का ही सम विल बी 60. तो n का एक वैल्यू नहीं आएगा, n का दो वैल्यू आएगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑब्जर्व. क्लियर है? देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि अगला टर्म जीरो है. जीरो ऐड भी करोगे, एडिशन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन 60. यस, देर आर टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर एन. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन होना चाहिए. देयर शुड बी ऑप्शंस फॉर दिस. चलो, ठीक है टाइम. आई गिव यू 2 minutes. Break down the question and get an answer out of it. Try. Answer is expected. Try. आंसर चाहिए आप लोगों से हमें. Comment your answer.
If 10th term and 16th term of a AP are 42 and 56, find the sum of first 25 terms of the same AP. हमें 25 टर्म्स का एडिशन चाहिए अगर 10th टर्म और 16th टर्म ये है। तो क्योंकि 10th टर्म है, हाउ डू वी राइट 10th टर्म? 10th term is a plus 9d. How much? 46. How do we write 16th term? a plus 15d. और वो कितना है? 56. ये 42 और ये 56. अगर दोनों को माइनस कर दे तो वी हैव 6d इज इक्वल टू, इनको माइनस कर दें तो 14. सो d इज इक्वल टू 14/6 विच इज 7/3. उसको मैं पहली टर्म में पुट कर देता हूं, a प्लस 9 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 42. कैंसिल कैंसिल 3. a प्लस 21 इज इक्वल टू 42. तो मेरे को यहां से मिल गया a इज इक्वल टू 21. अब ये दोनों चीजें मुझे मिल गई. व्हाट इज रिक्वायर्ड? 25 टर्म्स का एडिशन. एडिशन ऑफ 25 टर्म्स क्या होता है? n अपॉन 2 इंटू 2a, 2a प्लस n माइनस 1. 25 में से एक कम, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. तो अभी देखो ये हो गया 25/2 और अंदर में हो गया 42 प्लस ये कितना हो गया? 56. तो ये हो गया 25/2 इंटू 98. ये कैंसल 49. सो 25 इंटू 49. 25 इंटू 49. 1 2 2 5. ये आपका फुल प्रूफ मेथड है और लिखने के, सॉल्व करने के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में अगर आपका रफ वर्क चेक किया जाए. अभी आपके टर्म्स कितने हैं? 25. मैंने आपको टर्म्स क्या दिए? 10 और 16. आप देखो इनका जो पोजीशन है, पोजीशन जो है 16 और 10 का आपको दिख रहा है 25 प्लस 1 है. मैंने आपसे कहा था जब अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो जो पोजीशन होता है उनका एडिशन 1 ज्यादा होना चाहिए n से. वो तो ट्रू है. तो आपका अरिथमेटिक मीन है फर्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू, इन दिस केस अपॉन 2. तो ये बन जाएगा आपका 98 अपॉन 2, दैट इज 14, यानी अरिथमेटिक मीन है. व्हाट इज सम ऑफ नंबर्स? अरिथमेटिक मीन इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. ये होता है ना, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास 5 लोग हैं और हर कोई 12-12 रुपए एवरेज ला रहा है, टोटल पैसे कितने आए? एवरेज इंटू नंबर्स. एवरेज इंटू नंबर्स आपका आंसर 1 2 2 5 है. अब जो राइट साइड में मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर में, आपने कितने स्टेप में आंसर दिया इसका? ये तो ऑब्जर्वेशन है, सॉल्यूशन तो 2 स्टेप है. लेफ्ट साइड में आपको 10 स्टेप लग रहे हैं. देखो तो जो मैं आपको फॉर्मूले डिराइव करवा रहा था, दे आर वेरी यूजफुल फॉर्मूलाज. उस पे पैटर्न पे ऑब्जर्वेशन दो आप एंड लर्न फ्रॉम दैट. वही बेटा, कोई खतरनाक फॉर्मूला एकदम सिखा के चैंपियन बन जाओगे, कैट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. जो ऑलरेडी हर कोई जानता है, कैन यू यूज इट बेटर देन द अदर पर्सन? आप दूसरे पर्सन से अगर बेटर यूज करते हो तो आपका कैट क्रैक है. मैंने किस चीज को अच्छे से क्रैक किया यहाँ पे? जो उसका सम का फॉर्मूला होता है. 10th टर्म और 16th टर्म की जो पोजीशन है उससे अर्थमेटिक मील जाएगा मीन 25 टर्म्स का. तो अर्थमेटिक मीन इंटू 25 इज इक्वल टू सम. कमेंट डन.
डन, वेरी गुड. क्लिक करा. हाउ इज द राइट साइड अप्रोच वर्किंग? जो ब्लू में अप्रोच कैसे काम कर रहा है? Good. Moving on. Try this. First term of a AP, 10th term of a AP are these. अगर सबका एडिशन 425 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP? सबका एडिशन 425 है. एक 2 मिनट्स आंसर. ये बेसिक एप्लीकेशन है. So in this case, if I notice the first term is 19, 10th term क्या होगा? T10 first term plus 9 times of common difference. ये कितना गिवन है हमें? 8. So 9 times of common difference 27. Common difference हो गया हमारे पास 3. What is 425? Addition है. Is equal to n by 2 into 2a. ये पहला टर्म है ना, 2a into 2a plus n minus 1 into common difference 425. थोड़ा ध्यान दो how I am arranging. n is equal to n by 2. ये 3n हो जाएगा और ये -3 इसमें ऐड होके हो जाएगा -41. अगेन सेम अप्रोच. मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप ऐसे इसको सॉल्व करो. अगर आप वेरीफाई कर सकते हो दैट इज बेस्ट, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? 425 5 का मल्टीपल है, तो या तो ये 5 का मल्टीपल है या तो ये 5 का मल्टीपल है. वन ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ 5. एक एक करके ट्राई करते हैं. लेट मी ट्राई. देखो, छोटे मोटे 5-10 टर्म्स तो होंगे नहीं, बड़े टर्म्स आएंगे. और मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर 15 वैल्यूज हुए, if I put 15 by 2 into, यहाँ 15 पुट करेंगे, 15 तो हो जाएगा 45 माइनस 41 तो हो जाएगा 4. तो बहुत छोटा सम है. 15 तो बहुत कम पड़ गया. नेक्स्ट चेक 20 चेक करो, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल. इफ आई चेक 20 तो हो जाएगा 20 by 2 into, if I put 20 here तो हो जाएगा 60 माइनस दिस इज 19. क्या ये 19 का मल्टीपल है? नो. तो मुझे 20 भी कम पड़ा. लेट मी चेक 25 अपॉन 2 ब्रैकेट. इफ आई पुट 25 हियर
तो हो जाएगा 75 माइनस 41, 75 माइनस 41 दैट इज 34। तो ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 17। इस 25 इंटू 17 मैचिंग एक बार कंफर्म करो। 25 इंटू 17 इज 425, परफेक्ट मैच कर गया आपका। So how many terms are there? 25 terms are there. कंफर्म करो ये क्लिक हुआ आपको। देखो, आई हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस लाइक दिस इन द एग्जैक्ट सेम मैनर। 5 का मल्टीपल क्यों चेक कर रहे हो आप? क्योंकि 425 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर है? वेरी गुड। एवरीवन कंफर्म? Now we are starting with the theory of geometric progression. If we say, let us say the number is 3, 3 का डबल 6, उसका भी डबल 12, उसका भी डबल 24, उसका भी डबल 48. So in a geometric progression, numbers are not added, numbers are multiplied. जैसे फर्स्ट टर्म इज अगेन डिनोटेड बाय ए, और आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? 2, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। तो अगर ये ए है, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4। अब ये जो सीक्वेंस है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, द कॉमन रेशो इज मोर देन 1, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग सीक्वेंस। डाइवर्जिंग, वैल्यू दूर हो रही है एक दूसरे से, नंबर दूर हो रहे हैं। इफ द नंबर इज 3, इट बिकम्स 3/2, 3/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब, 3/2 टू द पावर 4। तो क्या हो रहा है? नंबर छोटे हो रहे हैं। आर क्या है? 1 से कम है, तो नंबर छोटे हो रहे हैं। दिस कॉल्ड कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग सीक्वेंस, कन्वर्जिंग जीपी। प्रॉपर्टी वही है जैसे मैंने आपको एपी में सिखाया था पहले। ये देखो, ये कौन सी टर्म है? ये फिफ्थ टर्म है, पांचवी टर्म है, इसमें आर की पावर 4 है। ये कौन सी टर्म है? ये फोर्थ टर्म है, आर की पावर 3 है। ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म, आर की पावर 2। सो जनरल टर्म ऑफ अ एपी इज ए आर टू द पावर n-1, जनरल टर्म। और T1, T1 इज ए। आर 1 से बड़ा है तो नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग सीक्वेंस। इसमें नंबर छोटे होते जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग सीक्वेंस। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का भी सीक्वेंस आता है, इसमें इनफाइनाइट टर्म का सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जिंग सीक्वेंस कैन हैव इनफाइनाइट टर्म, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। लिखो, इन्हें कंफर्म करो। वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक
गुड। अब मैं ना डेरिवेशन आपके लिए करूंगा, तो मैं आपको डेरिवेशन चाहता हूं आप लिखो, क्योंकि आगे जाके एक टॉपिक आएगा एजीपी, इन विच यू विल नीड द अप्रोच। बिना उसके एजीपी सॉल्व नहीं होता। तो सी, आई एम राइटिंग एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द सम ऑफ एन टर्म्स। पहला टर्म होगा ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ये एन टर्म्स का सम है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो आखिरी टर्म कैसी दिखेगी? ए आर टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स। एक्स को बुला रहा हूं मैं सम ऑफ एन टर्म्स। ये डेरिवेशन बहुत काम की, अच्छे से देखना। ये एक्स इज सम ऑफ एन टर्म्स। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो ये बन गया आर इंटू एक्स। तो ये जो वैल्यू है इट विल बिकम ए आर। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए आर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए आर क्यूब। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए आर टू द पावर 4। तो पिछली वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए आर टू द पावर एन। कैन आई से आर मल्टीप्लाई करने से इट लुक्स लाइक आई एम शिफ्टिंग टर्म्स टू द राइट। मैंने हर एक चीज को राइट साइड शिफ्ट कर दिया एक यूनिट से। मैंने इसको आर मल्टीप्लाई करके आगे डाल दिया, इसको आर मल्टीप्लाई करके यहां डाल दिया, सो ऑन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको मैं नीचे लाके माइनस कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स। ये वाली टर्म नीचे कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म सब कट जाएगी नीचे आके, ये भी कट जाएगी, ये टर्म बच जाएगी और ये टर्म नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो बेटा यहां से फॉर्मूला डिराइव होता है सम ऑफ अ जीपी, सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये डेरिवेशन, आई वांट यू टू हाईलाइट दिस। ये बड़े काम का रिजल्ट है। मैं आपको ज्योमेट्री में इसके क्वेश्चन दिखा सकता हूं। ज्योमेट्री में बहुत कॉमन है जीपी के क्वेश्चंस आना। गुड, क्लियर है? ये वाला क्लियर है? अब इसके छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। देखो, वी यूज दिस फॉर्मूला, ये जो आपके सामने है, फॉर एन टर्म्स। जब कॉमन रेशो जो होता है, कॉमन रेशो वो मोर देन 1 होता है। इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं, इट बिकम्स ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब कॉमन रेशो बिलो 1 होता है। सेम फॉर्मूला बिकम्स दिस। अभी देखो, अगर r बिलो 1 है, जैसे r हो गया 1/2 मीन्स 0.5, r हो गया इवन इफ इट इज 0.9, 1 से कम है। आप जब स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, डेसिमल तो और छोटा होता जाता है। जैसे 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.9 का स्क्वायर 0.81, और छोटा होता जाता है। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो, इसी में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये जो लास्ट टर्म होती है 0 हो जाती है। आप जब इनफाइनाइट पावर करोगे, आप 0.5 का इनफाइनाइट कर दोगे पावर, इट बिकम 0। आप 0.9 का इनफाइनाइट कर दोगे पावर, क्योंकि पावर बढ़ने से डेसिमल छोटे होते जाते हैं।
तो ये होता है फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। तो एक ही चीज के तीन फॉर्मूले, एडिशन के तीन फॉर्मूले, एक ये व्हेन आर इज मोर देन वन, एक ये व्हेन आर इज लेस देन वन, और ये के इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स तभी पॉसिबल है व्हेन आर इज लेस देन वन। आर लेस देन वन है तो ही इनफाइनाइट सम पॉसिबल है, अदरवाइज इनफाइनाइट सम हो ही नहीं सकता। डेरिवेशन, आई होप यू आर राइटिंग। व्हाट इज द अप्रोच कॉल्ड? शिफ्टिंग टू द राइट। हम राइट साइड शिफ्ट करके हम सीक्वेंस को माइनस कर देते हैं। गुड, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस। अब एक छोटा सा मैं चाहता हूं आप लोग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सीखें। ये एपी और जीपी दोनों को मैं प्रॉपर्टीज के फॉर्म में सिखाता हूं। इफ देर आर थ्री टर्म्स, अगर ये एपी में है, दैट मीन्स 2b is equal to a plus c और b is equal to a plus c upon 2। अगर ये तीन नंबर जीपी में है, दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और b इज इक्वल टू रूट ओवर a इंटू सी। इनको आप हाईलाइट करो। जैसे हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? a प्लस बी प्लस सी बाई 3। हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं तीन नंबरों का? क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। जो दूसरी प्रॉपर्टी एपी की है वो यहां भी काम करेगी। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? अगर n ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, तो जो मिडिल टर्म होती है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर तीन नंबर है ए बी सी, तो मिडिल टर्म ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन अगर ए बी सी डी ई है तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। ए बी सी डी ई एफ जी, सात टर्म्स हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। मिडिल टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन। ये लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टी जब जरूर हाईलाइट करो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था इनइक्वालिटीज में, ए एम जी एम। मैक्सिमा मिनिमा में हम यूज करते हैं, वो यही ए एम जी एम है। Arithmetic mean of numbers is more than geometric mean of numbers. Highlight this, write this down.
क्लियर है? देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, हम अज्यूम कैसे करते हैं व्हेन देयर आर 3 टर्म्स 5 टर्म्स, हम टर्म्स को अज्यूम कैसे करते हैं। वंस आई रीच दोज क्वेश्चन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा टर्म अज्यूम कैसे करते हैं। मूविंग ऑन, चलो ट्राई। कैलकुलेट नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है। व्हाट विल बी 20th टर्म ऑफ द सीरीज। मत कैलकुलेट करो, जस्ट रिप्रेजेंट कर दो, वी आर मोर देन हैप्पी। क्या है पहली टर्म, क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 3। कॉमन रेशो क्या है, व्हाट आर यू मल्टीप्लाइंग, डबल 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 2। तो 20th टर्म क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n-1। बस ये लिख के भी छोड़ दिया ना तो भी काफी है, T20 ये होगा। Try this. Which term of the series will be 6144? देखो, क्योंकि ये एक टर्म है 6144, इट विल बी इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1। तो 3 को अगर कैंसिल कर देंगे 2048 इज इक्वल टू टू द पावर n-1। अब आपको थोड़ा 2 का पावर के बारे में पता होना चाहिए। 2 का पावर 10 होता है 1024। 2 का पावर 11 इसका डबल होगा 2048। देखो ये क्या चीज है, 2 का पावर 11 इज इक्वल टू 2 का पावर n-1। सो n मस्ट बी 12। बस प्रैक्टिस करवानी है फॉर्मूलों की। तो ये बेसिक से शुरू के 2-3 क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट दिस, लेट मी नो।
Try this. दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको. 24,573 कितने टर्म्स का एडिशन होगा, एंड हमें लास्ट टर्म भी निकालना है. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड द लास्ट टर्म एज वेल. ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई. तो देखो, what is this? This is 24573 is equal to, what is the formula? A bracket r to the power n minus 1 upon r minus 1. यहां पर पहली टर्म क्या है? 3 इंटू r क्या है? 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. वैसे भी 2 माइनस 1 मैटर नहीं करता, 2 माइनस 1 विल नॉट मैटर. तो अभी मैं 3 कैंसिल करता हूं. देखो, ये 3 कैंसिल होगा ऐसे. 8 0 1 9 1 टाइम्स इज इक्वल 2 की पावर n माइनस 1. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो. 57, तो ये आगे 8 आएगा. 8191. तो 8192 इज इक्वल 2 टू द पावर n. अभी कौन सी पावर है? अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था. देखो, 2 टू द पावर 10 याद रखो, बहुत काम की वैल्यू है. तो इसको डबल कर दोगे 2048, इसको डबल कर दोगे 4096, इसको डबल कर दोगे, ये बन जाएगा 12 का 2 कैरिड ओवर 1, 18 प्लस 1 19 कैरिड ओवर 1. ये देखो 8192. तो ये n की वैल्यू क्या है? 13. तो व्हाट इज द लास्ट टर्म? आपको लास्ट टर्म चाहिए ना. लास्ट टर्म T13 क्या होगा? 3 इंटू 2 की पावर 12. ये 12 है, इसको 3 गुना कर दो. मल्टीप्लाइड 3, मल्टीप्लाइड 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट. तो 3 टाइम्स ऑफ दिस 18 का 8 कैरिड ओवर 1, 27 प्लस 1 28 कैरिड ओवर 2, ये 2 1 2 2 8 8. ये आपका T13. टोटल 13 टर्म्स है. n इज इक्वल टू 13 आ रहा है. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. गुड. मूविंग ऑन. अब ना कुछ कुछ बुक्स में इसे बहुत वियर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं.
पॉजिटिव को अलग कर देते हैं, नेगेटिव को अलग कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये 2 स्टेप में सॉल्व हो सकता है। गिव इट अ ट्राई, देयर इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस। आप ट्राई करो इसको, गिव 2 मिनट्स टू दिस। देखो, फर्स्ट टर्म जो आपका है, दैट फर्स्ट टर्म इज 1/3। जो कॉमन रेशो है वो थोड़ा संभल के, कॉमन रेशो इज -1/3। आपने यहां से आगे -1/3 मल्टीप्लाई किया। व्हेन यू मल्टीप्लाई नेगेटिव अगेन तो प्लस बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉमन रेशो नेगेटिव है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? फर्स्ट वैल्यू अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1/3। 1 माइनस कॉमन रेशो क्या है? -1/3। तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 अपॉन 4/3। 1/3 इंटू 3/4। तो व्हाट इज द एडिशन? 1/4। आपका जो एडिशन है दैट इज 1/4। बहुत से बुक में इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इनको अलग कर देते हैं, और इनको अलग कर देते हैं। ये 81 आएगा, यहाँ पे 243 आएगा। आपने ये सॉल्व करके भी सेम आंसर लाओगे जो मैंने नीचे लाया ना आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। आप फालतू के डिफिकल्ट करो। अब क्या हो गया? 2 अलग अलग जीपी हो गए। इसका आंसर क्या होगा? 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/9। और फिर इसका आंसर क्या होगा? 1/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। तो ये नेगेटिव आएगा। इन दोनों को माइनस कर दो, यही आंसर आएगा आपका। जो ऊपर अप्रोच देख रहे हो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ कुछ बुक्स में किया हुआ है, डोंट डू दैट। ये फालतू काम कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग टाइम हियर। और मैं आपको तरीके दिखाऊं? देखो, आपको अगर थोड़ा थिंकिंग डेवलप करना है, यू वांट टू डेवलप योर थिंकिंग, देखो मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज गिवन टू मी एज a is equal to 1/3, a is equal to 1/3 minus 1/9, 1/27 माइनस 1/81। अगला क्या होगा? 1/243। अगला क्या होगा? 1/729। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ना इन सब में से 3 कॉमन निकाल लिया। अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन निकालूं तो पहली वैल्यू बन जाएगी 1/3। ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1/9। क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड सो ऑन।
अब आप देखो, डू यू फील, आपको ऐसा लग रहा है कि यही तो ए की वैल्यू है? यहां से लेके आप देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज वैल्यू ऑफ ए. ए इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 ए. इसको इधर ले आओ. ए प्लस 1/3 ए इज इक्वल टू 1/3. क्या रिजल्ट मिलेगा? 4/3 ए, 1/3 कैंसल्ड, ए इज इक्वल टू 1/4. अब मैंने जीपी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया, मैंने कॉमन सेंस लगाई. वैसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल लर्न मोर एंड मोर मेथड्स, और आपके आंसर जल्दी जल्दी आएंगे. लुक एट दिस. क्लियर है? वेरी गुड. चलो, ट्राई दिस. फिर से इनफाइनाइट टर्म्स का सीक्वेंस है. सबसे पहले तो कॉमन रेशो क्या है? आपको यहां पर अगर क्लिक नहीं करा तो आप सबसे पहले यहां देखो, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू 1. अगर मैं 1/√2 मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 बन जाएगा. तो हमारी पहली वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू इज 2. और कॉमन रेशो क्या है? 1/√2. इनफाइनाइट नंबर का सम क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो. तो इसको रीअरेंज कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 2√2 अपॉन √2 माइनस 1. ये हमारा आंसर है. बट मेनी टाइम्स इन कैट इसको रैशनलाइज करके आंसर देते हैं. तो रैशनलाइज कैसे किया जाता है? जो भी डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, तो अब उसे क्या करोगे? a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों जगह पे. तो ये ऊपर बन जाएगा 2√2 ब्रैकेट √2 प्लस 1, और नीचे बन जाएगा a² माइनस b². ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a प्लस a माइनस a² माइनस b² बन जाएगा. तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 विच इज 1. तो आपका जो फाइनल आंसर यूजुअली दिखेगा कैट में, वो ऐसा दिखेगा. इसको √2 को भी अंदर भेज दो, ये आंसर है आपका. तो ना, कैट वाले ऐसा आंसर देते नहीं है यूजुअली. ऑप्शंस भी आप देखोगे ना, तो ऐसे आंसर यूजुअली देते नहीं है. दे रैशनलाइज इट. तो आपका आंसर या तो ऐसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा. बोथ आर फाइन. देख लो, इसको ऑब्जर्व करो. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. आज हमने अभी तक क्या किया? व्हाट हैव वी डन सो फार? हमने एपी डिफाइन किया है, जीपी डिफाइन किया है, और हमने उनका सम निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, जनरल टर्म निकाला. लेट अस ट्राई वन और टू मोर क्वेश्चंस. बी केयरफुल. पहले तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? व्हाट इज कॉमन रेशो?
तो देखो कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है, आप नेक्स्ट वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो। कॉमन रेशो इज इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाई 81। तो ये हो गया 9 × 6, ये हो गया 9 × 9, ये हो गया 3 × 2, 3 × 3। तो ये है आपका कॉमन रेशो। what do you want? You want sum of infinite terms. It is equal to first term अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। तो ये माइनस माइनस हो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया आपका 81 × 3 डिवाइडेड बाय 5। कोई जरूरत नहीं है इससे आगे निकालने की, लिख के छोड़ दो। सबसे पहले आपको कॉमन रेशो निकालना है। यू मस्ट नो व्हाट इज कॉमन रेशो। डिवाइड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशो आपको ऐसे मिल गया 10 सेकेंड्स में। एंड देन अप्लाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इनफाइनाइट जीपी का सम, a अपॉन 1 माइनस r। ये अप्लाई करो आप। मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। तो ये मैं आपको इनका फॉर्मूला कवर करा देता हूं। बेसिक है, काफी एलिमेंट्री है। वी विल सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ n क्यूब्स, सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ये 4-5 फॉर्मूले बार बार काम आते हैं, तो इनको बोल लाते हैं एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसा, दिस इज द फॉर्मूला, बस याद होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, समेशन n, एडिशन ऑफ n टर्म्स, ऐसे भी लिखते हैं। समेशन ऑफ स्क्वायर्स, एडिशन ऑफ स्क्वायर्स, summation of cubes, you should repeat these formulas 5 to 6 times over the next 1 week's time, ताकि ये बिल्कुल बाय हार्ट हो जाए। बहुत कॉमन है ये एग्जाम्स में। इस एडिशन को बोलते हैं समेशन। समेशन n क्यूब n इंटू n प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर। Copy these down, comment done.
अब ये एडिशन ऑफ इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के फॉर्मूले, एक रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 + 4 + 6 + 8, तो जो आखिरी वैल्यू है इट शुड लुक लाइक 2n. The addition is n into n plus 1. Odd number must start from 1. 1 से ही फॉर्मूला काम करता है. 1 + 3 + 5 + 7. थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट टर्म को कैसे लिखा जाता है, 2n - 1. लास्ट टर्म पे ध्यान दो. द एडिशन इज n². जैसे अगर कोई मुझसे बोले 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ये करके बताओ, मेरा पहला फोकस जाएगा इसको कैसे लिखते हैं. इसको लिखते हैं 2 × 8 - 1. n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर आएगा 64. आपको अगर चाहिए तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो. मैन्युअली कैसे करना है देखो, इट इज एपी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज 16, तो 16/2 इज द एवरेज. कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो डू यू सी इट टर्न्स इनटू 8² बाय डिफॉल्ट. एपी है ना बेटा, +2 +2 +2. व्हेन देयर इज अ गैप कॉमन, तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इज द एवरेज. ये एवरेज है. एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एडिशन. क्लियर है ये. This is the formula for addition of even numbers and odd numbers, starting from 2, starting from 1. Yeah. So in the next session, we'll pick up from application of these formulas. We can continue now as well, but फिर वो बोर जाओगे आप लोग, थक जाओगे. Two things we have done in much detail, that is AP and GP. क्या होता है जनरल टर्म, एडिशन ऑफ टर्म्स, 3 नंबरों का अरिथमेटिक मीन, 5 नंबरों का अरिथमेटिक मीन कैसे निकाले, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाले, फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए, वो सब भी आपने देखा है. तो नेक्स्ट सेशन विल पिक अप फ्रॉम एडिशन ऑफ दीज सीक्वेंसेस. Yeah, done for today. Yes.